Hello everyone, this video is for grade 2nd. Let us start. The sheet is divided into 3 equal parts. So we have 3 different sections in which we will read about 3 different subjects: English, Maths and EVS. Let us start with our first subject, Maths. Write skip counting by 3. In previous video, we have learned about skip counting by 2. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्किप काउंटिंग बाय 2 कैसे लगता है. 2 नंबर को स्किप किया और 3rd नंबर को राइट किया. दैट इज skip counting by 3. But how do we write skip counting by in previous we have seen skip counting by 2. But how do we write skip counting by 3? हम skip counting by 3 कैसे write करते हैं? Means 3 की skip counting. In this what we will do? We will skip 3. हम क्या करेंगे? We will skip 3 numbers. 3 नंबर को छोड़ के 4th नंबर राइट करेंगे. ओके, 3 नंबर को छोड़कर 4th नंबर को राइट करना है. दिस इज ओनली कॉल्ड skip counting by 3. As we have done in the previous question, just like that we have to do again. But the difference will be we have to skip 3 here. सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि इसमें हमें 3 स्किप करना है. ओके, लाइक 7 है. 7 के बाद 3 स्किप करो. 8, 9, 10 इन तीनों को स्किप करेंगे और लिखेंगे 11. क्या लिखेंगे? 11. What we will write? 11. After 11, 12, 13, 14. ये 3 स्किप किया. We will write 15. What we will write? 15. After that we will skip again 3 वापस skip करेंगे. 16, 17, 18. We will write 19. What we will write? 19. So in this way you have to skip 3. 3 स्किप करना है और काउंटिंग राइट करनी है. नेक्स्ट इज 18. 18 के बाद 3 स्किप कीजिए. 19, 20, 21. वी विल राइट 22. हम क्या राइट करेंगे? 22. 18 के बाद 22. अगेन स्किप 3. 23, 24, 25. वी विल राइट 26. 3 स्किप किया. 26 राइट करेंगे. अंडरस्टूड? क्या करना है? काउंटिंग रीड करती जानी है. 3 नंबर को स्किप करते जाना है और 4th नंबर को यहाँ पे राइट करते जाना है. अंडरस्टूड? व्हाट वी विल डू? वी विल रीड द काउंटिंग, skip 3 numbers and then we will write 4th one. Understood? Yeah, very good. So in this way you have to write skip counting by 3. Let's move to our next section, which is of English. The question says, write the past tense of the following verbs. यहाँ पे कुछ वर्ब दिए हैं, इनका हमें पास्ट टेंस राइट करना है कि ये मतलब भूतकाल में कैसे लिखेंगे. राइज मतलब उगता. हम कहते हैं ना द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन क्या है? सूर्य का है. वह पूर्व में उदय होता है. सन राइजेज इन द ईस्ट. So we will change these into past form. Rise मतलब सूर्य उदय होता है ना. Sun rises in the east. सूर्य उदय होता है.
कहाँ? पूर्व में। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? सूर्य मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता था, ठीक। सो इट विल बी लाइक रोज, ROSE। राइज का पास्ट फॉर्म होगा रोज, ROSE। उदित होता था, ये मतलब हो जाएगा। अंडरस्टूड? थिंक, थिंक मतलब सोचा, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? थॉट। सोचा था, I thought, मैंने सोचा था। THOUGHT, thought। Do, DO, do। डिड, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? डिड, किया था, I did, DID, डिड। Understood? In this way, we have to write the past form of these following verbs. ये जो वर्ब दिए हैं इनके हमें पास्ट फॉर्म राइट करने हैं। Understood? Yeah. And see the next question. Write the present tense of the following. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं जो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में हैं, इसे हमें प्रेजेंट में चेंज करना है। The word is cut. कट चेंज नहीं होता है, ओके। इट विल बी एज इट इज ही रहेगा ये, CUT, कट। ड्रू, ड्रू मतलब क्या होता है? ड्रॉ, मतलब यहाँ ड्रॉइंग से मतलब है। ड्रू, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। टॉट, टॉट मतलब सीखना मतलब है। टॉट, I taught, मतलब कहते हैं ना, मैंने तो आपको ये नहीं सिखाया था। I haven't taught you this, मैंने आपको ये नहीं सिखाया था। सो इट विल बी टोल्ड, TOLD, टोल्ड। केम, CAME, केम, केम मतलब आए थे। इट विल बी कम, COME, come। Understood? In this way, we will change these past form into present. So, what we have to do in this, in English, first question, past form, present को past में change करना है, और second वाले में past को present में change करना है, just opposite, okay? Let us move to our last section, which is of EVS. Answer the following questions. What do we do in bedroom? हम bedroom में क्या करते हैं? What do we do in the bedroom? We sleep in the bedroom. हम bedroom में सोते हैं। We sleep in the bedroom. What do we do in the study room? हम स्टडी रूम में क्या करते हैं? हम स्टडी रूम में क्या करते हैं? Yes, we study in the study room. स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं। Yes. What do we do in the bathroom? हम बाथरूम में क्या करते हैं? We take bath in bathroom. Okay. So in this way you have to answer these questions. You will write whole sentence. Okay, not in one word. You will write the whole sentence. पूरा sentence write करेंगे आप. That we sleep in the bedroom. We study in the study room. Understood? Like this. Now see the last question of this sheet, which is why do we need a house? 3 points. So okay. हमें एक घर क्यों चाहिए? Why do we need a house? इसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स राइट करने हैं।
दैट वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर क्यों चाहिए. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेदर कंडीशंस, हर वेदर से हमें बचाएगा. आइदर इट विल बी कोल्ड और हॉट और रेनी, कैसा भी मौसम हो इससे हम सेफ रहेंगे. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमी एंड सन्स अल्ट्रावायलेट रेज, दुश्मनों से और सूर्य की अल्ट्रावायलेट मीन्स बहुत तेज किरणों से हमें बचाएगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है. इन सारी चीज़ों से हमें बचाता है. हमें घर क्यों चाहिए? रहने के लिए चाहिए. फॉर अ प्रॉपर शेल्टर, फॉर अ प्रॉपर लिविंग वी नीड अ हाउस. सो यू हैव टू राइट दीज 3 पॉइंट्स. कोई 3 पॉइंट्स राइट करने हैं इसी तरीके से कि आपको घर क्यों चाहिए. वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें एक घर क्यों चाहिए. So, I hope you all have understood this sheet very well. But if you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.